अज सोमवार का दिन 15 मई 2023 जेठ के महीने की संग्रांद है। जेठ का महीना प्रारंभ होने जा रहा है। सब संगतां नूं बहुत बहुत वधाई होवे। सच्चे पातशाह सब दियां झोलियां खुशियां दे नाल भरपूर करे, सब नूं खुशियां देवे, सब दे मन दियां कामनावां पूरियां करे, यह मेरी कामना है। सो दूसरे पासे 1 जेठ 2080 देसी महीना जिहड़ा है वह भी अज प्रारंभ हो रहा है। जेठ के महीने की संग्रांद बहुत बहुत वधाई होवे। आओ सत्संग दे नाल जुड़िए। 12 माह माज महला 5वां घर चौथा। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जिस अगे सब निवन। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जिस अगे सब निवन। हर सज्जन दावण लग्या, किसे न देई बन। माणक मोती नाम प्रभ, उन लगे नाही सन। रंग सबे नारायण, जेते मन पावन। जो हर लोड़े सो करे, सोई जिय करन। जो प्रभ कीते आपने, सेई कहिए तन। आपन लिया जे मिले, विछड़ क्यों रोवन। साधु संग प्राप्ते, नानक रंग मानन। हर जेठ रंगीला तिस तनी, जिसके पाग मथन। हर जेठ रंगीला तिस तनी, जिसके पाग मथन। राग माज दे विच पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जेठ के महीने की उस्तत की है। जेठ का महीना सब महीनों चों वड्डा गिणिया जाता है। इसे करके जे जेठ है उहदे अगे निभना साडा फर्ज है। जे वड्डा भरा है पति देव का वो जेठ है, उत्थे भी उन्होंने नमस्कार करनी बनती है, क्योंकि जेठ है। इस करके गुरु महाराज ने जेठ की सिफत की है कि उदों वड्डा कोई नहीं, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਭਣਾ ਹੀ ਨਿਭਣਾ है। इस तरह सारे महीनों के विचों सब तो वड्डा, सब तो वड्डे का मतलब है दिन जोड़े है वो सब तो वड्डे होणगे। दिन का चानन जोड़ा है वो जे गिनती करांगे सब तो ज़्यादा चानन जोड़ा वो जेठ के महीने ही आएगा। इस करके सानू उहदे अगे निभना चाहिए, उस अकाल पुरख के अगे निभना चाहिए जोड़ा सब तो वड्डा है, जोड़ा सब तो वड्डा है उहदे अगे निभना है। सो आओ हुण आपां सत्संग जोड़ा है
ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਸੰਧਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ 2 ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 17 ਤੇ 18 ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਾਂਗੇ ਈੜੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਕਰ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਕਰ ਧੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਦੋਤਰੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤਾਂ ਕਰ ਪੋਤਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈੜੀ ਨਾਲ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਈੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਏਕਾ ਪਾਇਆ, ਏਕਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮ ਜੋ ਗਾਵੇ ਸੋਈ ਤਰੇ, ਉਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ? ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸਮਝੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਧੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਜਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਣੇਸ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਸਵਤੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੂਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਮਕਾਰ ਤੇ ਨਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਨਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਲੈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਗਾਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਤੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹੀ शिव जी है, वही गणेश है, वही सरस्वती है। वखरे वखरे पूजन की लोड़ नहीं, एक निरंकार नूं पूजो जे पूजना है, जिहदा कोई आकार नहीं। क्योंकि तुसी गुस्से हो जाओ, तुसी गालां कड्डो परमात्मा नूं, तड़के उठ के रब दा नाम लैण दी बजाए उहनूं गालां कड्डणियां शुरू कर दो। उहने रोटी तुहानूं रज के देनी है, सवेर नूं ब्रेकफास्ट भी वधिया देना है, दोपहर का लंच भी देना है, शाम नूं डिनर भी देना है। क्यों? उहनूं कोई फर्क नहीं पैंदा। जे सब मिल के आखन पाए वड्डा ना होवे घाट ना जाए, जे सारे रल के कहन लग जान वो बहुत वड्डा है, वो बहुत वड्डा है, वो वड्डा नहीं हुंदा। जे सब मिल के आखन पाए, रहराज साहब दे विच आउंदा है, जे सब मिल के आखन पाए वड्डा ना होवे घाट ना जाए, ना वो मरे ना होवे सोग, देदा रहे न चुके भोग। वो दिंदा ही है, दे ही जांदा, वो कदे भी तुहाडे जिहड़ा राशन वाशन है उहदे च कमी नहीं करदा, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ चाहे दुनिया जिधर दी मर्जी चली जावे, अकाल पुरख हमेशा सत रहेगा, सच्चा ही रहेगा। वो नाम वाला है, नाम सतनाम, वो नामरे वाला, नाम वाला है, क्योंकि उसका नाम है। कोई रब कह के याद करता है, कोई अल्लाह कह के याद करता है, कोई खुदा कह के याद करता है, कोई गॉड कहता है। गल इक्को ही है, भाषा ही बदली है। जे असीं कहने अल्लाह अल्लाह कर दो तो मुसलमान हो गया, और नहीं बई, फारसी च अल्लाह ही कहते हैं रब नूं, अल्लाह ही कहते हैं तो उन्हें अल्लाह ही कहना है। भाषा ही बदली है ना। हिंदी असी हिंदी च कह दें वो तो परमात्मा का नाम लेता है, असी कह दें पंजाबी च वो तो भगवान का नाम लेंदा है। गल तो इको ही है, परमात्मा कह दो, भगवान कह दो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, कोई कुछ मर्जी कह दो, उसका नाम है। वो नाम बहुत वड्डा है, करता। फिर वो नाम काले च मशहूर है कि वह करता है, सृष्टि का करता है। देखो करता इंसान भी है, सवेर तो शाम तक कुछ ना कुछ बनाउंदा, कुछ ना कुछ करदा, कोई काम करदा, कोई बीबियां फुलके बनाउंदियां ने, भांडे मांजदियां, कोई होर काम करदियां, कोई उस तो बाद वेला समय कढ़ाई कर लिया, चादरां बना लियां, कुछ करदियां। करता वो भी है, लेकिन वो करता जिहड़ा अकाल पुरख है ਉਹਦੇ 'ਚ फर्क है। की फर्क है? करता वो पुरख है, पुरख मतलब पुरया होया है। जिहड़ी चीज़ उन्हें बनाती उहदे च पुर गया। हो हुणे घड़ा घुमियार ने बनाया, घुमियार ने घड़ा बनाता, असी सारे घड़े लैके अपने अपने घरां नूं आ गए, सारे अपने अपने घरां नूं पहुँच गए। घड़ा साडे कोले है, बनाया घुमियार ने, घड़ा साडे कोल पिया बनाया घुमियार ने, लेकिन असी जानते नहीं। असी कहने भी तो असी लिया ठीक है, वो कित्थे कित्थे चले गए घुमियार दे घड़े, कित्थे कित्थे पहुँच गए। लेकिन अकाल पुरख ने जो चीज़ बनाई है उहदे च आप बैठ गया। कीड़ी तो लैके हाथी तक पुरया होया, जो कुछ भी मालिक ने बनाया, जिन्ने मर्जी जानवर लै लो जंगलों च फिरन वाले, या कीड़े मकौड़े इंसान, जो भी है उहदे च परमात्मा बैठा है। जे उहदे च परमात्मा नहीं तो इंसान ही नहीं, वो जीव ही नहीं। जीव कदों बनता है? जदों उहदे च जीव आत्मा बैठ जाती है आके। इस करके वो करता भी है, पुरख भी है, नाल पुरख भी है कि वह पुरया होया उहदे च, वो तो बिना उहदी रचना जिहड़ी है अधूरी है। निरभौ, फिर वो डरदा किसे तो नहीं। डरदा कौन हुंदा? जिहड़ा छोटा होवे वो वड्डे तो डरदा, वो डरदा। या जिहदी मत छोटी होवे वो बुद्धिमान तो डरदा है, या जिहदे कोल पैसे घट होण वो अमीर तो डरदा है। वड्डा है वो तो डरदा है। लेकिन परमात्मा निरभौ है, वो किसे तो डरदा नहीं, क्योंकि वो तो वड्डा ही कोई नहीं। सब तो वड्डा परमेश्वर है, वो तो वड्डा कोई नहीं, वो तो डरना की तो है। इस करके वो किसे तो भी डरदा नहीं। निरभौ है, निर्वैर है, किसे नाल उहनूं वैर नहीं।
मैं पहले ही कहा कि तुसी सारा दिन उन्होंने गालां कढ़नियां शुरू कर दो, उस अकाल पुरख से कोई फर्क नहीं पैंदा, उन्हें तुहानूं रज के देना है। एक बार एक खलीफा सी, वो कहन लग्या भी मैं पहला किसी नूं रोटी खुआ के फिर मैं रोटी खाया करूँगा, एवें खानी नहीं, जे ना मिलेगा मैं भुखा रह लवांगा लेकिन खानी नहीं। मुसलमान लोग कई बारी अपने जो है ना इष्ट प्रति शरधा भावना उस परपक्क बहुत होंदे ने। उन्होंने 40 दिन तक कोई बंदा ना मिलिया जिन्हों रोटी खवा सकता होवे। 40 दिन भुखा बैठा रहा, कहना खांदा मैं भी नहीं, जिन्ना चिर कोई आउंदा नहीं उन्होंने रोटी खवावांगा फिर मैं रोटी खावांगा, उन्ना चिर खांदा मैं भी नहीं। 40वें दिन उन्होंने एक व्यक्ति बहुत बजुर्ग मिलिया, बहुत बुढ़ा सी। वो कहन लगे बाबा जी फुलका छको। वो कहते उन्हें नमस्कार की, भुख बहुत लगी सी उन्हें फुलका छक लिया, बैठ गया। छकिया नहीं, अजे बैठा ही है तो खलीफा थाली लैके आए परोस के लो पहला फुलका छको। उन्होंने की किया, ना नमस्कार की, ना रब का नां लिया, ना कुछ किया। उन्हें फटाफट बुरकी तोड़ी, भुख लगी सी मूँह च पा ली। तो वह कहन लगे बई थाली चक ली, खलीफे ने थाली चक ली, तैनू तो रोटी खानी नहीं आती, तू तो रब का नां ही नहीं लिया, तू नमस्कार नहीं की, तैनू रोटी नहीं मिलेगी। वो कंबदे हत्थां नाल उत्थों उठ के चला गया। भुख लगी सी, हत्थ तो कंबने ही है। वो उठ के चला गया। जदों थोड़ी दूर गया, आकाशबाणी हुई कि ऐ खलीफे तू अज एक दिन इनू रोटी देन लग्या सी, सिर्फ एक दिन, तो ये अगों थाली चक ली कि इन्हें रब का नां नहीं लिया। यदी उम्र 90 साल है, इन्हें अज तक एक बार भी रब का नां नहीं लिया, तो 90 साल हो गए। मैं इनू रोज़ रोटी देना, सवेरे दोपहरे शाम रोज़ रोटी देना, लेकिन तू अज ही देन लग्या सी, अज ही थाली चक ली। फिर भज्या खलीफा उहदे मगर कि बाबा जी मैथों गलती हो गई, मैनू खिमा कर दो। ये है करता पुरख निरभौ निर्वैर, उन्होंने किसी नाल वैर नहीं, वो किसी तो डरदा नहीं, ना वो किसी नाल वैर करे ना किसी तो भै मन्ने। अकाल मूरत, अकाल वो काल दे विच नहीं आउण वाला। जे काल किवें है, असीं काल दे जे गल करांगे असीं ये कहांगे कि परमात्मा पिछले जन्म च किते होया होएगा, ਇਹਦਾ मतलब भूतकाल की गल करते हैं। जां असीं कहांगे भी हो सकता है रब अगले आने वाले समय च हो जाए, अजे तो मैं देखा नहीं, जां वो हुण है। ये गल्लां सारियां उहदे ते टुकदियां नहीं। वो पहलां भी सी, वो अज भी है, आने वाले समय च भी होएगा। वो काल तो रहत है, काल तो परे है, समय दे विच बजदा नहीं। समझ गया ना, किसी भी समय च नहीं आउंदा, ना प्रेजेंट च, ना पास्ट च, ना फ्यूचर च। दिन से न रहन वेद नहीं शास्त्र, तहाँ बसे निरंकारा। दिन से न रहन वेद नहीं शास्त्र, तहाँ बसे निरंकारा। कह कबीर नर तिसे ते आओ, बावरिया संसारा। जे रात नूं चंद निकलिया तो साडे वास्ते रात हो गई, रात हो गई, चंद निकले आया। जे नेरा दूर हो गया, सूरज निकले आया तो साडे वास्ते दिन हो गया। ये सानू रात दा, चंद तो सवेर दा, सूरज तो दिन दा पता लगता है, तारियां तो रात दा पता लगता है, होर कोई पता वाली गल नहीं। जे ना निकलन ये नेरा ही नेरा, धुंधुकारा है, हुण भी धुंधुकारा है। जिमें अरबद नरबद धुंधुकारा, तरनी ना गगना हुक्म अपारा। ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाध लंघाइंदा। जे अज भी सूरज ना निकले, अज भी चंद्रमा ना निकले, अज भी तारे नज़र ना आउण, अज भी धुंधुकार है। ये सिर्फ दिन काहदे नाल बने ने, चंद सूरज ते तारे एक इंडिकेशन है कि भाई दिन चढ़ गया। तो इस गल दे विच परमात्मा नहीं आउंदा। वो रात है, दिन है, चंद्रमा चढ़िया है नहीं चढ़िया है, उन्होंने इस गल नाल गर्ज नहीं। वो हर कोने कोने दे विच विराजमान है। अकाल मूरत, फिर वो मूर्तिमान है, सानू नज़र आवे या ना आवे, हर जर्रे जर्रे दे विच परमेश्वर बैठा है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी आँख रूह वाली आँख ने पहचान ली। समझ गया ना, किसी अख नूं पता लगता है कि हाँ भाई परमात्मा है सारे ही, है सारे ही,
लेकिन सानू समझ नहीं है। इस करके वो कहते भी वो मूर्त है, किते ये ना समझ लियो कि वो मूर्त है बनाई जाती है, किसी तो बाजार चों मिल जूगी भगवान की मूर्त है। असी जिन्नियां भी मूर्तां बनाउने आ साडियां काल्पनिक मूर्तां ने, असी अज तक परमेश्वर का दर्शन नहीं किया। करांगे किवें? वो तो लाइट एंड साउंड है, वो तो लाइट है साउंड है। वो मूर्त कौन बनाएगा कि लाइट है साउंड है? असी मूर्त बनावांगे ये पंज तत्व की देह दी, वो पंज तत्व तो आउंदा ही नहीं, वो इदों तो परे है। सो इस करके वो कहते ने वो मूर्तिमान भी नहीं, मूर्त च भी नहीं आउंदा, अजूनी, क्योंकि वो जूनिया च नहीं आउंदा, वो अजूनी है। वो कदे किसे जून च आ गया, कदे किसे जून च आ गया, इदां नहीं। वो ओदी मर्जी है, किसे जून च आके भी प्रगट हो सकता है, किसे जून च आके भी प्रगट, ओदी मौज है, जिमें मर्जी आ सकता है वो, लेकिन किसी खास जूनी दे नाल ओदा संबंध नहीं। सहपम अपने आप प्रकाशमान है। असी मोमबत्ती जगाने आ, माचिस चलाने आ या गैस तो चला के जगावांगे, किसी ना किसी चीज़ की आसरा लैके असी जगावांगे, लेकिन मालिक अपने आप तो प्रकाशमान है। कितों लाइट लैके उन्हें लाइट प्रकाशित नहीं हुई। फिर अगों उन्होंने कहा गुर प्रसाद, गुर वखरा है प्रसाद वखरा है। गुर का मतलब है ज्ञान देने वाला। हुण जिन्ने एदा मतलब ये नहीं कि इंसान ही गुरु धारदा है, इंसान नूं ही गुरु का पता है। जिन्ने पंछी हैं, जिन्ने भी जीव हैं, चार चौपाए हैं, पंछी हैं, जेड़े जिन्हां दे कन्न है नहीं वो आंडे दिंदे आ, जिन्हां दे कन्न बाहर नज़र नहीं आउंदे वो आंडे दिंदे आ, जिन्हां दे कन्न बाहर नज़र आउंदे आ वो बच्चे दिंदे आ। जिहड़ा लक के पानी पींदा, जेड़े पशु लक के पानी पींदे आ वो मासाहारी ने, जेड़े चूस के पानी पींदे ने वो जेड़े वो मासाहारी नहीं, वो वैजीटेरियन ने। एक निशानी रखी है उन्हें। वो जिन्ने भी मतलब जीव ने इन्हों अपने बाल बच्चे बनाने का पता है कि सानू भी परिवार चाहिए। उन्होंने कौन सिखाउण आया? चिड़िया नूं कौन सिखाउण आया कि थोड़े विच होर भी गां चिड़ियाँ चाहिए ने? कबूतरां नूं कौन सिखाउण आया कि होर भी कबूतर चाहिए है? क्यों? वो ज्ञान दे रहा है, वो गुरु उन्होंने दे सिर ते है, हर चीज़ का ज्ञान उन्होंने। कई बार ਜਿਹੜੇ पंछी ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ आलने बना लेंदे ने कि इंसान पौचक्का रह जाता कि एडे वधिया आलने अस तो बना ही नहीं सकते। तीला तीला चुन के वो इन्ने वधिया आलने बनाते ने। ये किने दिता ज्ञान? गुरु ने। वो अकाल पुरख गुरु है, हर जीव का गुरु है, हर जीव का। चाहे कीड़ा है, कीड़े तो कीड़े बन रहे हैं, पंछियां तो पंछी बन रहे हैं, पशुओं तो पशु बन रहे हैं, मच्छियां तो मच्छियां बन रही ने। पानी दे विच 42 लाख जीव जल में होते बीठल पहला काए करो। अद्धियां जूनियां तो पानी च पईयां ने, उन्हां सारियां दे विच ही परमात्मा बैठा। किनू किनू पूजा तो किनू छड्डां। सो इस करके वो कहते हैं कि जिहड़ा गुर है ये परमात्मा आप ही बनता है, हर जीव नूं ज्ञान दिंदा है। फिर है प्रसाद, वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपाधारी है, बड़ा ही कृपालु है। जो कृपालु ना होवे ये सृष्टि रची नहीं जा सकती, ये सृष्टि चल नहीं सकती, उहदी दया नाल चलदी है। क्योंकि काल ने जिथे रब दा नां है उत्थे जाना नहीं, उत्थे खड़ना नहीं। धर्मराज ने अपने जमदूतां नूं हुक्म किया होया, जहाँ साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना तू ना हो ना छुटे निकट न जायो दूत। ना हो ना तू ना छुटे निकट न जायो दूत। कहने जिथे साधु का कीर्तन हो रहा होवे, सत्संग चल रहा होवे, या जिथे मालक का कीर्तन दरबार लग्या होया, देखियो कि उत्थे भुल के ना चले जाओ। ना तू छुटना ना मैं छुटना। ना हो ना तू ना छुटे निकट न जायो दूत। दूतां नूं फरमाया धर्मराज ने, उन्हां दे नेड़े ना जाओ, आप फस जाएंगे। जिथे मालक का नाम है उत्थे नेड़े नहीं जाना। इस करके जिथे कीर्तन हो रहा होवे उत्थे धर्मराज नेड़े, धर्मराज ने तो धर्म का फैसला देना, उत्थे यम दे दूत नहीं आउंदे, नेड़े भी नहीं आउंदे। यह मतलब है जो गुरु महाराज ने सुखमनी साहब च लिखा, सब तो उत्तम हर की कथा, सब तो उत्तम जी हरि की कथा है जो हुण हो रही है। क्योंकि साढ़े कुछ पल्ले पऊगा, सानू कुछ समझ आएगी, इस करके साडा मन भी लगेगा। उत्तम सब तो उत्तम जो है हरि की कथा है। कई एक बारी
गुरु पातशाह गुरु रामदास जी नूं संगतां ने आके आख्या, सच्चे पातशाह कीर्तन तो तुसीं करदे नहीं, रब रब करोगे कीर्तन करोगे तो मालक छेती मिलूगा। वो कहंदे इन्ना मेरे को समा नहीं, मैं कीर्तन वास्ते घुंगरू इकट्ठे करा, ढोलकियां लियावां, कसां, जिन्ना समा मैं उहदी तैयारी वास्ते लाऊंगा उन्ने चिर नूं मैं मालक दे नाल जुड़ जाना है, मेरा ध्यान लग जाना है, मेरी लिव लग जानी है। इस करके मैं समा खराब नहीं करना चाहुंदा, मेरे अंदर परमेश्वर है, मैं उहदे नाल लगना। साधु दी गल ही होर हुंदी है, उहदे कोल जिहड़ी गल दा साडे कोल जवाब नहीं कोई भी हुंदा। सो इस करके गुरु महाराज ने ये मूल मंत्र लिखिया है, गुरप्रसाद तक मूल मंत्र है, ये जपजी साहब का भी मूल मंत्र है, सारे गुरु ग्रंथ साहब का भी मूल मंत्र है। उस तो बाद बाणी शुरू होंदी है जप, जप दे दुआले सारी बाणी जिहड़ी है वो परिक्रमा कर रही है। सारा गुरु ग्रंथ साहब जप दे दुआले परिक्रमा कर रहा है कि जपना है, मालक नूं जपना है। जिवें चौ बोले है, सुखमनी साहब है, रहरास साहब है, साहब तो असीं लाया होया नाल, सुखमनी कल्ला सुखमनी लिखा होया, साहब नहीं लिखा, रहरास लिखा होया, साहब नहीं लिखा। गुरु ग्रंथ साहब दे विच रहरास साहब नहीं लिखा, असी लाया सत्कार नाल। इत्थे जप है, असी नाल जप जी साहब, जी भी लाता साहब भी लाता, क्योंकि साडे मन च सत्कार है बाणी ओहो ही है जप, जप निशान। अगला जड़ा निशान है कि अगे भैया ने पाठ किया होया, सानू एक परचा दिता है, निशान दिता है कि अगे जाओगे दिखा दो, तैनू अगे लंघन का राह मिल जूगा, यो है जप। आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच, ये जप तो गा श्लोक है। जप बाणी शुरू होगी, एक श्लोक ਇਹਦਾ शुरू च है, एक श्लोक ਇਹਦੇ अंत च है, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात। दो श्लोकां ਦੇ ਵਿੱਚ जपजी साहब ਦੀ बाणी ਬੰਨੀ ਹੋਈ है, ਬੱਜੀ ਹੋਈ है, समझ के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀ नहीं हो सकती। सो इस करके उन्होंने पहला लिखे आद सच, कि वो मालक आद जदों कुछ भी नहीं बनया सी उदों भी सच सी, उदों कोई जुग नहीं सी, कुछ नहीं सी, लेकिन मालक सी। जुगाद सच, फिर जुग बन गए, जुग बन गए उदों भी फिर मालक आ गया, वो उदों भी सच सी। है भी सच हुण भी है, नानक होसी भी सच, आने वाले समय च भी अकाल पुरख इवें रहेगा। यानी चारे स्थितियां दे विच, चारे हालातां दे विच मालक साडे कोल है, मालक साडे नाल है, वो किते दूर नहीं जाता। दूर समझण वाले जिहड़े ने उहनूं दूर कर दिंदे आ, वो नेड़े हूँ ते नेड़ा, सब तो नेड़े है। असीं कह दिंदे भी तेरे घसुन नेड़े कि रब, वो डरदा कह दिंदा भी मेरे तक घसुन नेड़े है, भी तू दिसदा नहीं, रब नेड़े है, रब नेड़े है। जे वो चाहे तलवार चक्की हुई नूं उत्थे दी उत्थे ही ओहदी बाहर रुक सकती है, चलदी नहीं, खड़ा रह जाएगा कि किवें होया, ये किवें चलेगी, किवें वो कीता होया। इतिहास पढ़ के वेखो कित्थे कित्थे, जे हुण साखियां सुनाउण लग जा कथा लंबी बहुत हो जाएगी। इस करके वो जे चाहे तो तलवार सूती हुई नूं रोक सकदा। छोटी जी गल है कि मीरा दे सामने, मीरा नूं गल लाउण लग्या सी राणा जेठ ओहदा कि चल तेरा गल ला दियां मैं, उहने कहा भी ला दे ला दे, उन्हें इक्को ही गल कही, क्योंकि मालक नूं कृष्ण भगवान नूं रोज़ देखदी सी। मीरा दे मन गिरधर गोपाल वसे, मीरा दे मन गिरधर गोपाल वसे, मीरा दे मन, मीरा ते गिरधर, मीरा ते गिरधर दोनों, मीरा ते गिरधर चौपड़ खेलन, मीरा ते गिरधर चौपड़ खेलन, मीरा दे गिरधर हसे, मीरा दे मन। दो जने बैठे हैं हस पे, बाहर आवाज आऊगी, मीरा दे मन गिरधर गोपाल वसे, मीरा दे मन। राणा कहे मीरा, बाहर खड़ा सी, राणा कहे मीरा कौन सी दूजा,
राणा कहे मीरा कौन सी दूजा, जेड़ा तेरे नाल हसे मीरा दे मन, गिरधर गोपाल वसे मीरा दे मन। मीरा कहे राणा गिरधर मेरा, मीरा कहे राणा गिरधर मेरा, जेड़ा मेरे नाल हसे मीरा दे मन, जेड़ा मेरे नाल हसे मीरा दे मन, गिरधर गोपाल वसे मीरा दे मन। शक्की नूं शक ही रहिंदा, क्योंकि उसकी आदत शक करन दी बन चुकी है। वो गलत ही सोचेगा। वो कहंदा नहीं, राणा कहे मीरा मार मुका देंगा, राणा कहे मीरा मार मुका देंगा, जे तू सच न दसे मीरा दे मन, जे तू सच न दसे मीरा दे मन, गिरधर गोपाल वसे मीरा दे मन। मीरा कहे राणा मार मुका दे, मीरा कहे राणा मार मुका दे, खुशी कबीला तेरा वसे मीरा दे मन, खुशी कबीला तेरा वसे मीरा दे मन, गिरधर गोपाल वसे मीरा दे मन। राणा तलवार लैके आ गया, क्या तो काम मौज बन गई। चल कहना रख देरी ते सिर, दहलीज ते सिर रखवा लिया। वो बैठी आ कि मैं परमात्मा नूं मिलना, मैनू कि जे सप भेज सकता वो गहना बन सकता है, जहर भेजी है वो अमृत बन सकती है, तो तलवार की चीज़ है। उन्हें देली ते दहलीज ते सिर रख लिया। जदों रखन चक्कन लग्या तलवार, वह सिर कतल करने वास्ते तलवार चक्की। हुण 5 मिनट भी लांगे 10 मिनट भी लांगे, वो वेखदी है कि अजे तक तलवार ही नहीं आई मेरे गर्दन ते। थोड़ा जिहा सिर तां चक के वेखदी है भी राणा है भी खड़ा भी है कि नहीं। वेख्या तां राणा कंबी जा रहा, गर्दन उहदी हत्थ दे विच तलवार जिहड़ी है उस तरह ही कंब रही है, खड़ा कंब रहा। उहदे पिछे राणे दे पिछे भगवान कृष्ण नाच कर रहे हैं। राणे की बैक साइड ते भगवान मीरा नूं नज़र आ रहे हैं, राणे नूं पता नहीं। वो मीरा खड़ी हो गई, सच्चे पातशाह ये की लीला है तुहाडी। वो कहंदी मीरा मंग जो मंगना, अज तू मौत नूं भी गले ला लिया, अज मंग जो तू मंगना। कहंदी हे कृष्ण भगवान जे तू मैनू देना ही है अज राणे नूं दर्शन दे दे, इनू पता लग जाए मैं किनू पूजदी हाँ, इनू पता लग जाए मैं कौन हाँ, मेरा कौन है, मेरा सिर ते साईं मेरा कौन है। राणे नूं दर्शन दे दे। किड्डी दयालता की मीरा ने, राणे नूं दर्शन देते। सो ये है कि वो जिहड़ा मालिक है उहदे वास्ते कोई दो नहीं, उहदे वास्ते सब इक्को ही है, परमेश्वर इक्को ही है। असी समझते वो दूर समझते हैं, वो तो नेड़े है, वो नेड़े तो नेड़े है तो परमेश्वर है, उदे ही आ जाता। वो जे साड़ी देखिए द्रौपदी दी कितना समा लाया, कितना समा लाया, एक सकिंट के अंदर जिन्ना चिर उन्हें याद नहीं किया वो नहीं आया, वो नहीं आया। पहला भी मैं सत्संग जिक्र किया सी तो रुकमनी ने कहा जे द्रौपदी इन्नी औख दे विच है जाते क्यों नहीं, कहते याद तो करे, थोड़ा याद तो करे। वो इन्हें याद किया, वस्त्र रूप धारण कर लिया उन्हें। सो उन्होंने याद करना बनता है, फिर वो 1 सैकंड भी लाउंदा नहीं। सोचे सोच न होवई, जे सोची लख वार। सोच हुंदा इशनान करना। साडे देश च पानी की कोई घाट नहीं, नदियाँ नहरां झीलां पानी का कोई अंत नहीं, पहाड़ों के विचों वन सवन्ने रूप दे विच पानी जिहड़ा है वो आ रहा है।
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਲਫਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਏਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁੱਚਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੋਤੇ ਲਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਈ ਜਾਊਗੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਈ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਲ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ 4 ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਹੋਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਡੱਡੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਡੱਡੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਬਣਦਾ। ਜਨਮ ਸਹਸਰ ਪਾਪ ਤਨ ਸੋਈ, ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਂਢਕ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਮੇਂਢਕ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਂਢਕ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਨਮ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਂਢਕ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਸਮਝਦਾ, ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। 5 बार गंग जाए, बार पंच प्रयाग नहाए, ऐसा पुण्य एक गुर सिख को नवाएगा। जे तू कहने 5 बारी गंगा जाके इशनान करना, जे तू 5 बारी प्रयागराज जाके इशनान करना, तू मन च धार लिया, आ फिर मैं तेनों ये 5 का फल देवां। 5 बार गंग जाए, बार पंच प्रयाग नहाए, ऐसा पुण्य एक कादे नाल गुरसिख को नवाएगा। जे एक गुरसिख ਨੂੰ ਨਵਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰੇ, ਸਾਬਣ ਲਾਵੇਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ है तो घरे ही दिता उन्हें। 5 बार गंग जाए, बार पंच प्रयाग नहाए, तैसा पुण्य एक गुर सिख को नवाएगा। सिख को पिलाए पानी, पाओ कर कुर खेत, अश्वमेध जग फल सिख को जिवाएगा। जे किते प्यासे नूं पानी पिया देवें, जे किते प्यासे नूं पानी पिया के तेरे मन नूं तसल्ली हो जाए, फिर कहते तू ऐ लगता भी कुरुक्षेत्र की यात्रा कर आया। तो जे तू किसी भुखे नूं रोटी खवाती, गुरसिख बंदा है, भुखा है, उन्हें कहा कि मैनू 2 फुलके चाहिए है, जे मिस्से बना दूँ तो बहुत चंगा। मन आया वह बेचारे का। जे किते तुसी मिस्सी रोटी वो मन के मुताबिक बनाती, जो उन्हें मंगया तुसी देता, थोड़ा अश्वमेध यज्ञ का फल जिहड़ा है वो मिल जाएगा। कितना सौखा काम दिता।
अश्वमेध यज्ञ फल सिख को जिवाएगा। फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी काम नहीं सरिया। जैसे सात मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुण्य सिख को एक शब्द सिखाएगा। जे कोई सिख तुहाडे कोल आउंदा है, तुहानूं कोई रब दे नां दी कोई मंत्र पता है, तुसीं उहनूं थोड़ा जिहा दसता कि आप बैठ के रब रब करदे आ, कहंदे जिवें 7 सोने दे मंदिर उसार के दान कर दईए ना, इन्ना पुण्य जिहड़ा उस नूं मिलदा है, इन्ना फल जिहड़ा है उस नूं मिलदा है जे किसी नूं गुरमंत्र दे दईए। सब तो वड्डा फल, जैसे 20 बार दर्शन साधका किया काहू, तैसा एक बार दर्शन करो ना साधु दा, एक बार पता नहीं अनेक ही फल मिलते हैं। 2 बार करो कोई अंत ही नहीं, जे 20 बार दर्शन करो इसका मतलब सृष्टि खरीद ली उन्हें। लेकिन वो कहते जैसे 20 बार दर्शन साधका किया काहू, तैसा पुण्य सिख को चाप पग सुआएगा। कहते वो एक सिख थकिया आया, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ पैर घुट के ਉਹਨੂੰ नींद आ गई, ਉਹਨੂੰ बहुत आराम ਦੇ ਵਿੱਚ चला गया, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 20 ਵਾਰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ कंधार ते काबल तो संगतां जिहड़ियां सी महाराज दे दर्शन करन आईयां, उदों कोई साधन नहीं सी, घोड़ियां ते आउंदे सन या फिर गरीब बंदे तुर के आउंदे सन, तुर के भी आउंदे सन, कई दिन पैंड करदे सी, रस्ते दे विच उन्हां ने थोड़ा जिहा पड़ा कर लैणे कि इत्थे रुकांगे, इत्थे खावांगे पीवांगे, इहदे गांह चलांगे। सो संगतां काबल कंधार चों आ रहीआं सी, काफ़ी संगतां सी। 10 किलोमीटर रह गया, 10 को अमृतसर रह गया, तो संगतां कह लगियां कि रात हो गई है, हुण 7 साढ़े 7 वज गए है, चलो हुण आपां सवेरे दिने चलांगे, रात नूं विश्राम करदे हां, थोड़ा आराम मिलेगा। उधरों पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज जिहड़े गुरगद्दी ते विराजमान होए ने, नौजवान अवस्था सी उन्हां दी, उन्हां ने माता गंगा जी नूं आख्या, अपने महलां नूं आख्या कि तुसीं लंगर तैयार करो, दाल बनाओ, फुलका बनाओ। उन्होंने कहा 7 बचन, उन्होंने नहीं कहा लै इस वेले तुहानूं की होया ना, 7 बचन। उन्होंने लंगर तैयार किया, फटाफट बाल्टियां च लंगर पाया। गुरु पातशाह आप पैदल चल के उत्थों तक गए, 10 किलोमीटर लैके गए लंगर। जदों पहुँचे गरम गरम लंगर सी उन्हां कोले, संगतां नूं छकाया, सब नूं बड़े प्रेम नाल। ये नहीं दस्सिया मैं कौन हाँ, सब दे पैर घुट्टे, जेड़े बजुर्ग सन उन्हां दे पैर घुट्टे। वो कहन नहीं तुसीं साडे क्यों पैर घुटदे हो, कहंदे कोई गल नहीं, तुसीं थके होए हो, मैं तुहाडे पैर घुटूंगा। उन्हां नूं सारी रात चरण सेवा करदिआं लंघ गई, गुरु अर्जन देव जी नूं दिन चढ़ गया। उन्हां ने उत्थों चाले पाए, संगतां नूं कहंदे चलो हुण तां चलदे आं। हुण वो सारी रात च उन्हां दे अपने ही बन गए, कोई नवीनता रही नहीं। जदों आए दरबार साहब गए, उदों दरबार साहब कोई कंध कौड़ा नहीं सी, बिल्कुल खुला मैदान सी, जिवें हुण दरबार साहब है इवें नहीं सीगा, खुला मैदान सी। उन्होंने जोड़े जुत्तियां बाहर ही लाते। हुण जोड़ा कोई कुत्ता बिल्ली भी लिजा सकता है, कोई जानवर भी लिजा सकता है, कोई चोरी करके भी लिजा सकता है। वो कोई सियाणा बजुर्ग सीगा उत्थे, वो कहन लगे भी इदां करो तुसीं एक जना राखी बैठ जाओ जोड़ियां दी, उन्होंने बाद विच दर्शन करवा लियावांगे, असीं पंचम पातशाह दे दर्शन कर आई। वो कहंदे ठीक है। वो सारे कहन भी मैं अंदर जाना है, कोई कहे मैं अंदर जाना है। पंचम पातशाह कहन लगे ये जोड़ियां दी राखी मैं बैठूंगा, ये जोड़ियां दी राखी मैं बैठूंगा, होर कोई नहीं बैठेगा। वो जो उन्होंने आख्या चलो ठीक है, एक जने की लोड़ सी, बैठ गए। वो जोड़ियां दी राखी बैठे आ, जोड़े साफ भी कर रहे हैं, राखी भी बैठे आ। जदों अंदर गए बाबा बुढ़ा जी अंदर फिर रहे सन, वो कहन लगे असीं पंचम पातशाह दे दर्शन करने हैं। कहंदे पंचम पातशाह तां जोड़ियां दी सेवा च बैठे आ, वो थोड़े नाल ही सीगे। कहंदे हैं, सारे भज्जे, वेख्या तो वो जोड़ियां दी सेवा कर रहे हैं, रो रो के बुरे हाल कर रहे। सच्चे पातशाह सारी रात साडी सेवा भी कीती, साडे चरण भी पैर भी दबे, साडी इन्नी सेवा करके सानू गूढ़ी नींद च सवाया, ते हुण तुसीं साडे जोड़ियां दी भी सेवा कर रहे हो। कहंदे नहीं, मैं सेवादार हाँ, मैनू गुरु महाराज ने अपनी अस्थान ते एक सेवादार नियुक्त किया है, मैं सेवादार हाँ, सेवा ही करनी है। तो इन्नी सेवा इन्नी नम्रता किहदे च होएगी जे ये कहंदे जदों ये साडे च आ गया, केड़ा इशनान
ਕਿਹੜਾ ਗੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਕਿਉਂ ਕਿਰਾਏ ਪੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਾ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ परमात्मा ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ परमात्मा नहीं मिलता। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਕਈ ਸਾਧੂ ਜਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਚੁੱਪ ਮਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਖਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਫਿਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਠ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਜਾਖਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਸੁਜਾਖਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਸੁਣਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਪਤਾ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ, ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹੱਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਦੀਵਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਤੂੰ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਚਿਆਰ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਜੇ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੂਗੀ? ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਨ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਰੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਖਾਇਓ ਤੱਕ ਨਾ ਰੋਟੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ,
वो तृष्णा की भुख है, वो तृष्णा जिहड़ी है वो पूरी हुंदी नहीं। भुख्या भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार। एक पुरी तक ही अनेकां पुरियां, पुरियां हुंदा शहर नगर, उन्हां दा भार इकट्ठा करके गठड़ियां बना के नाल बन दिता जावे तां भी इहदी तृष्णा की भुख जिहड़ी है वो मिटदी नहीं। कई वाम मार्गी पहला पढ़ते रहे असीं कि भी मन बड़ा शैतान है, जे ये भुख है ना इनू रज के रजा दो, जो कहंदा इनू करन दो। ये खाण नूं मंगदा दे ही जाओ, ये पीण नूं मंगदा दे ही जाओ, ये दारू दा भुखा इनू दे ही जाओ। जदों रज गया अपने आप पासे हट जाएगा। और नहीं, उन्हें रजना नहीं। ये ऐसी लस्ट है, ये ऐसी लस्ट है जिहड़ी होर वधदी जाएगी, होर वधदी जाएगी, होर वधदी जाएगी। सो इस करके वो कहंदे ने भुख्या भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार। तू जिन्ना मर्जी अपने आप नूं संकोच लै, अपने आप नूं रजा लै, ये तेरी तृष्णा जिहड़ी है ये पूरी होनी नहीं। इस करके महाराज कहते ने बई जे तू मालिक नूं मिलना है तो इधर आ, भुख वाले पासों वर्त रखने बंद कर दे। वर्त रखते आए काहदे वास्ते? वर्त रखने यही है ना कि मैं अज भुखे रहना है, क्योंकि मैं अज करवा चौथ का वर्त रखा है। देखो सारे जो नहीं समझ होंगी ना, शायद मैं भी रखा होएगा, रखा क्योंकि नहीं पता। पर मैं कबीर साहब का श्लोक पढ़ रही सी, मैनूं याद है उत्थे लिखिया सीगा, कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार, गदी होए के अवतरै पार सहे मन चार। गुरबाणी च लिखिया होया, गदी होए के अवतरै पार सहे मन चार। मैं क्योंकि उन्हें हरि का सिमरन तो छड़ता, अहोई का वर्त रख लिया। जब मैं पढ़िया, एक बारी पढ़िया, दो बारी भी मैं कदे अर्थ गलत तो नहीं समझ रही। गदी होए के अवतरे पार से मंजार, मुड़ के वर्ता काटा मारता कि कोई भी वर्त रखना नहीं। ये तो गुरबाणी किसी होर पासे ले जाती है। तां सानू पढ़न का फायदा है, तां सत्संग जान का फायदा है भी जे असी कोई अमल करना होवे। ये साडे वर्तां नाल कुछ नहीं हुंदा, वर्तां नाल कुछ नहीं हुंदा। जे असी कहिए ना भी मैं वर्त रखूँगी तो मेरे पति देव की उम्र लंबी हो जाएगी, वो चल रही है, पता नहीं कितने साल हो गए चल रही है, और लंबियां करने वाला वो आप है। नाले सानू की पता किसी की उम्र कितनी लंबी है, कितनी लिखी है, किमें है। ये सारिया गल्लां देखो देख एक रिवाज बन गया, और कुछ नहीं। वो कहते भुखे रहने नाल परमात्मा नहीं मिलता। साफ किया उन्होंने, शुरू च ही कहता। ये तो कबीर साहब ने आधे श्लोका च लिखा ना, कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार, गदी होए के अवतरे पार सहे मनचार। कई बार गुरु महाराज पंज ग्राई वाले बाबा जी फरमाते हसना, उच्ची उच्ची हसना। फिर उन्होंने भी महाराज ने की लिखा है तो बीबीओ तुसी की कर दियो, तुसी की कर दियो। ज्ञान की कमी है। सरस्वती की पूजा की करूगी जो बुद्धि नहीं लई? बुद्धि तो दे रही है, वो बुद्धि लई नहीं असी। फिर वो सरस्वती की पूजा करने नाल कुछ नहीं हुंदा। फिर वो अगे उन्होंने सवाल किया, नहीं सहस सियाणपा लख होए तो एक न चले नाल। असी विद्या प्राप्त करते हैं कि मैं अकलमंद हो जावांगा। एक अकल की सहस हज़ारां ही अकलां तू कट्ठियां कर लै, हज़ारां ही अकलां कट्ठियां कर लै, एक भी तेरे नाल नहीं जानी। महाराज ने गुरबाणी च लिखा है, मता करे पच्छम के ताई पूरब ही ले जात। बता करे पश्चिम के ताई पूर्व ही ले जात, खिन में थाप उथापन हारा आपन हाथ मतात, काहू सियानप काहू कामनात, जो अनुरूप ठाकर मेरे हो रही हो बात। कहते तू मता तो किया मैं पश्चिम वाल जाना, लै जाता तेन पूर्व वाल, तेन गांह जाके पता लगता ओ मैं तो होर पासे आ गया, मैं तो होर पासे जाना सी, हुण की करा। पूर्व ही ले जात खिन में थाप उथापन हारा, थापना हुंदा बना देना, खिन में एक क्षण दे विच बना दिंदा, उथापन हारा चक दिंदा, मार दिंदा, खत्म कर दिंदा। खिन च मारता खिन च बनाता, खिन में थाप उथापन हारा आपन हाथ मतात। मतांत रेजोल्यूशन जिहड़ा उन्हें पाउणा है, मता जिहड़ा उन्हें पाउणा है उहदे आपदे हत्थ च है। उन्हें 5 बंदे इकट्ठे करके सलाह नहीं करनी भी आपां फलाणे नूं ले आईए, उहनूं मार दईए या इहनूं जन्म दे दईए ना। जो उहदे मन च आ गया उहने कर देना। तेरी सियाणप कित्थे गई? तेरी सियाणप तो चली नहीं। सहस सियाणपा लख होए तो एक न चले नाल। वो किते होर ले जांदा तैनूं
तू किते होर ही चला जाना। सो इस करके कहना ये सारियां सियाणपां छड्ड दे, एक भी सियाणप तेरे नाल जाएगी नहीं। जे तू याद करना है उस मालिक नूं याद कर। फिर किवें किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटे पाल। फिर मैं सचियार किवें, सचियार कौन हुंदा? जिहड़ा मालिक दे राह ते तुरन वाला है। देखो दुੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦਹੀਂ 'ਚ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਦਹੀਂ 'ਚ ਦਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਤੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਤੀ ਮੇਲ ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ वर्ग की चीज़ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मेल हो सकता है। इस तरह जे असी उल्टी चीज़ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ तक जे असी गलत चीज़ खा भी लईए, पहला दुध पी लिया मगर वो शिकंज भी पी लो तो फिर तुसी बीमार हो सकते हो, क्योंकि दोनों चीज़ां अंदर जाके मेल नहीं खाता उन्होंने। तो कहते किव सचियारा होइए। फिर हुण तू सचियार बनना है, किवें बनना है? तू झूठ के मार्ग ते चल रहा है, वो सच्चा है। तैनू पहला सच दे मार्ग ते आना पएगा, फिर तू सच दे मार्ग ते जाएगा, फिर तू सच्चा बन सकता है। एवें जा नहीं सकता। सच दे मार्ग ते जान वास्ते तैनू सच दा लड़ फड़ना पएगा, फिर तू जाएगा। फिर वो तेरी कंध जिहड़ी है ना झूठ दी वो टुट सकती है। नहाउण नाल, भुखे रहण नाल, चुप रहण नाल नहीं टुटदी। अकल वरतन नाल नहीं टुटदी। सहस सियाणपा लख होए तो एक न चले नाल, एक भी नाल नहीं चलनी तेरी झूठ दी दीवार टुटदी नहीं। क्योंकि जे हुण असीं देखिए बंदा सचियार है, इहनूं पता है कि मालिक सच्चा है, ये सच, इहदी मंजिल सच है, ये तुर रहा है सच वल नूं। फिर झूठ की चीज़ आ गई इहदे च, क्योंकि एक काल है एक दयाल है। सच वल नूं जा रहा पर कशिश झूठ दी भी है। कशिश खिच जिहड़ी है ना झूठ दी भी है। एक सोने का गहना है, एक मुलम्मा चढ़िया होया। मुलम्मा चढ़िया उहदी चमक ज़्यादा है, असीं फिर बार बार उहनूं वेखदे आ कि सोहना तो यह ज़्यादा लगदा, फिर वो खिचदे आ उधर नूं। तो इहदा मतलब जो असीं एक कदम सच वल पट लिया तो एक कशिश झूठ दी है, एक पिछे चले गए। एक सच वल पट लिया, एक फिर पिछे चले गए। मतलब उत्थे दे उत्थे खड़े आ, एक कदम अगे जाण दी कोशिश करदे आ, एक पिछे चला जांदा है। दुबदा च जिउ रहा बंदा, दुबदा च जिउ रहा बंदा, सच दे विच नहीं जिउ रहा, दुबदा च जिउ। जदों दुबदा आ गई उत्थे असीं फेल हो जावांगे, उत्थे मालिक नूं मिलन तो दूर हो जावांगे। फिर वो कहंदे किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटे पाल। किवें कूड़ दी कंध टुट सकती है? तो वो कहंदे हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। इक्को ही उन्होंने दिता हुक्म रजाई, बहुत वड्डी गल है। हुक्म रजाई एक नियम बनाए है महाराज ने। महाराज वो नाल ही लिखे हुए आ, जदों असीं जन्म धारण किया वो नियम नाल ही आए। हुक्म रजाई चलना, वो हुक्म च चलना। वो हुक्म की है? नियम है। एक छोटा जिहा बच्चा है, 2 घंटिया का बच्चा है, 2 दिन का बच्चा है, तुसीं उहदे मूँह च रोटियां पाउण लग जाओ, वो खा लेगा? उन्होंने पता ही नहीं की करना। असीं उहदा नियम तोड़ता। जे उहदे मूँह च दाल पाओगे मिर्चां जाणगियां, बीमार हो जाएगा, क्योंकि उहदा नियम नहीं कि ये तू ये खवा। उन्होंने सिर्फ दुध ते रखना है। ये नियम सानू उन्हें सोच दिती हुई है, नाल ही दिती हुई है। उन्हें पीना ही दुध है। असी सड़क ते जाने आ, कोई ट्रैफिक के नियम नहीं बने हुए, है ना? भी लाल बत्ती होगी रुक जाओ, येलो होगी देखो तो जाओ, ग्रीन होगी तो चले जाओ, कोई डर नहीं। लेकिन जे असी लाल बत्ती नूं देख के भी मैनू किहड़ा रोकण वाला, मैं तो चलिया, नियम तोड़ता, तो की होएगा? एक्सीडेंट, दुख होएगा। वो अकाल पुरख अपने बच्चों को दुख नहीं देना चाहता। वो कहना मेरे सारे बच्चे सुखी रहन। उन्हें नियम बनाया, उन्हें हुक्म बनाया कि ये मुताबिक चल, तू दुखी नहीं होएगा। असी उस नियम को तोड़ दिन्ने। छोटी जी गल है, असी ट्रैफिक के नियम तोड़े, असी अंदर हो गए, फस गए। फिर मुड़ के असी काली की, उदू भी ज़्यादा लेट हो गए, घरे ही नहीं पहुँचे किन्ने किन्ने दिन, क्योंकि सानू जेल बंद करता। तो फिर वो कहते भी ये हुक्म जिहड़ा है ये उहदा नियम है, इस नियम के मुताबिक असी चलना है, इस नियम को तोड़ना नहीं। जिहड़ा नियम को तोड़ देगा वो दुखी होएगा, वो सुखी नहीं हो सकता। दुख ते सुख दोनों चीज़ां इकट्ठियां ने। नियम को तोड़ देना दुख है, नियम के अनुकूल चलना सुख है। केड़ी चीज़ लाओगे? नियम के अनुकूल चलना। हुक्म, हुक्म रजाई, उहदी रजा के मुताबिक जिहड़ा नियम बनया होया है उहदे मुताबिक चलना नानक लिखिया नाल। ये जब तू संसार ते आया तैनू नाल ही लिख के भेज दिता है। उन्हें कोई वखरा नहीं लिखिया, ये तेरे नाल ही लिख के भेजा कि तू इउं करना। ये हुक्म है।
देखो अज साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है, इन्नी तरक्की कर ली कि बंदा आसमान च उड्या फिरदा, सारे समुंदर देख लैंदा उत्ते आसमान ते जाके। लेकिन जे तुसी सोचो इन्हें कोई तरक्की नहीं की, कख भी तरक्की नहीं की। क्यों? ये खून बना के दिखावेगा, एक खून बना के दिखावे। असी खीर खाने, रुखी रोटी खाने वाला ओदा भी खून ओहो जाए, खीर खाने वाले का खून भी ओहो जाए। लेकिन तुसी मशीन दे विच वन सवन्ने पदार्थ पा दिओ कि भी ये चो खून बन के निकलेगा। अज तक किसी ने खून नहीं बनाया, नहीं। क्यों? ये अपने हथ च रखे उन्हें, ये नियम उन्हें अपने हथ च रखा कि ये कोई नहीं कर सकता। फिर तो मैं गया, खत्म हो गई गल, फिर तो बंदा ही सब कुछ हो गया। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, भी वो हुक्म के मुताबिक रहना है, वो हुक्म के मुताबिक चलना है, ये महाराज ने लिखा है। सो मैनू तो सलाह सी 2 पौड़ियाँ कर लाँगे, पर एक तो 1 घंटा बीत चुका है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुकराना तुहाडा सब दा। आओ बेनती करिए। करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुन राधा स्वामी मोरी। 7 पुरुष तुम 7 गुर दाता, सब जीवन के पिता और माता। दया तार अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। 7 युग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। काल युग में स्वामी दया बिचारी, परगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, पौ सागर से पार लगाए। 3 छोड़ चौथा पद दीना, 7 नाम 7 गुर गात चीना। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। सेत सिंहासन छतर विराजे, अनहद शब्द गैब तुन गाजे। क्षर अक्षर नेह अक्षर पारा, बेनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊँ सुख तामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक अलोक पाऊँ सुख तामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। करूं बेनती दो कर जोरी, स्वामी दो कर जोरी। अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।